फिर इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। ओके तो इसलिए आई वांट कि जैसा ये ग्राफ है ना, थोड़ा वैसा ही मिलता हुआ ग्राफ यहाँ पे भी मिल जाए हमको वेव फॉर्म में, ठीक है। तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमको यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे जो है काफ़ी वेव फॉर्म यहाँ पे हैं अच्छी खासी, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अब बीट्स भले मैच ना हो रही हो, लेकिन शोर उतना ही मैच हो रहा है जितना होना चाहिए, ओके यानी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बराबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे हमको बेस्ट बीट दिखेगी, लाइक यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये कांस्टेंट पावर को यूज कर लेंगे ताकि, ठीक है। Now I got it. Yeah. Thank you. ओके, सो इस टू थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, और मैं भी अपना ब्लूटूथ थोड़ा सा चार्ज कर लूँ, बैटरी लो बोल रहा है बार बार। Okay. Sure. ठीक है। What time are we meeting like again? हाफ एन आवर आई गेस, एक लंच ब्रेक ले लेते हैं। Sure. Alright. Bye.
Hello everyone. Hi. So कुछ लोग कम लग रहे हैं. हाँ, I think अभी बाकी लोग Survi, I love Survi and Nitin also if they are. Yes. And Anand is also not here. I'm here. Hello Eva. And Prajanya and Anamika. Yeah, I'm here. Okay. So everyone is here except Surabhi, Nitin and Anand. Not here. I texted in my group, but I don't think so. The others are coming. It's just us. Nobody replied, so I don't know. Anamika might come. Maybe in the meantime, you can tell Pratnya Yes. what you were doing. Yeah, I'm here. Yeah, Anamika is here. Okay. So Surabhi is not here. Nitin is not here, and Anand is not here. Shall we proceed? Yes, please. Yeah. All right. Okay, so the next part is time remapping. Okay, so okay, are you guys able to see my screen? Yeah. Yes. Okay, so for time mapping, do one thing. Suppose मुझे इस video footage पे time map करना है. So first I will increase the height of this footage, and then I'll right click over here. Okay, because I need to ungroup all this thing. Yes. इसको ungroup करके इस पे गए, and here is show clip keyframes. Okay, I'll go to this thing and then time remapping and then speed. All right, so now you can see a single line over here. Okay, so time remapping क्या होगा कि time remapping से आपको speed किसी चीज की slow और fast कर सकते हैं. All right, suppose if I want to increase the speed of it, suppose from this part to this part, यहाँ तक कि मुझे स्पीड बढ़ानी है. So what I do here, you can see a keyframe over here. ठीक है, so यहाँ से मैं keyframe ऑन कर दूंगा. तो यहाँ पे keyframe आ गई है, ये keyframe लग गई है. ठीक है, you can also see the keyframe over here also. यहाँ पे भी है. और फिर यहाँ पे 5 सेकंड पे लाके मैंने एक और keyframe लगाया. ठीक है, सो अब ये दो की फ्रेम्स लगी हैं. अब मुझे अगर इनका टाइम बढ़ाना है
सो द वन वे इज कि मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर दूं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इससे ये टाइम ट्रैकिंग में इसकी स्पीड बढ़ रही है और कम हो रही है। द सेकेंड वे इज कि इसको जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, इस की फ्रेम को, then I'll press shift, hold the shift button and then drag it to left or right। ठीक है, अब मैंने अगर इसको यहाँ पे ड्रैग करा ना, यू कैन सी नीचे जो है परसेंटेज लिख के आ रहा है। तो सपोज 200% पे किया, समवेयर 199.32। ठीक है, फिर अब मैं प्ले करूँगा। Retail transition from selling at store. स्पीड इसकी बढ़ गई है। Retail transition from selling at store to selling at home. It increased. Transition from selling at store to selling at home. Can you see it? Retail transition from selling at store to selling at home. और अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ा दिया तो यहाँ पे स्पीड इसकी स्लो हो Transition जाएगी। from selling at store to selling at home. It increased the comfort of shopping for customers, but brands lost the ability. ठीक है, इस फुटेज का। Got it? How did you get that line? Sorry? How did you get the time that line? Okay. So फुटेज पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, so ऑप्शन आएगा शो क्लिप की फ्रेम्स, then I'll go to time mapping and then select the speed। Okay, so I'll get that line. हाँ, इसको थोड़ा सी हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमको की फ्रेम्स दिख जाएंगे, की फ्रेम्स का ये टॉगल मिल जाएगा। Transition from selling at store to selling at home. It increased. What? I don't think I'm getting the last option. On the right. Okay, increase the. अच्छा, can you share your screen, please? Yeah. So here's the video. Right click and then. और नीचे क्लिक करिए इस पे, हाँ एरो पे, और go to the last part। Yes, show clip Okay. keyframes, time mapping Okay. and then speed। ठीक है, Okay. now do one thing, इसको इसके साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाइट थोड़ी। Alright, now you can see the keyframe। Yeah. Okay, so now you can put the keyframes over here। Oh yeah, it's right here. No? Yes. Okay. Then I can just press shift on the keyframe. Yes. Is this the keyframe? Yeah. Shift and just hold. Okay, got Yes. it. Correct. Thank you. Correct. All right. So what's the use of time mapping? जनरली अगर हम लोग को कभी वॉइस ओवर सिंकिंग करना होता है या फिर किसी की भी स्पीड धीमे और तेज करनी होती है तो वहाँ पे भी यूज टाइम मैपिंग। ठीक है, सो वन थिंग इज दिस कि आपने इसकी स्पीड को स्लो कर दिया। द अदर थिंग, अगर आप इसको आपने जैसे इसकी स्पीड को फास्ट कर दिया, यहाँ पे Transition from selling. फास्ट हो गई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। I think you need to share screen. हाँ, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे इसकी स्पीड फास्ट है, कैन यू सी? Transition from selling at store to selling at. ठीक है, नाउ सपोज इफ आई वांट कि वो ग्रेजुअली इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल आए, तो विदाउट होल्डिंग शिफ्ट बटन आई सेलेक्ट दिस की फ्रेम एंड जस्ट ड्रैग इट। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ स्लैंट काइंड ऑफ थिंग। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल दबा के कैन चेंज द की फ्रेम। हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है,
हाँ, from selling at store to selling at home, it increased the comfort of shopping for customers. ओके Store to selling at home, it increased the comfort of तो shopping. यहाँ पे ये ग्रेजुअली ये जो है स्पीड तेजी से भी नॉर्मल पे जा रहा है। जैसे पहले क्या हो रहा था जब यहाँ पे थे तो ये एकदम से स्पीड इसकी तेज Transition है from selling at store to selling at home, it increased the comfort और एकदम से नॉर्मल हो जा रही थी of speed। shopping for तो वो सिंस एकदम से नॉर्मल ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें स्लैंट दे दिया तो ये ग्रेजुअली नॉर्मल होगी। selling at store to selling at home, it increased the comfort of shopping for customers. Got it? और ऐसे ही हम ग्रेजुअली इसको बढ़ा भी सकते हैं। When retail transitioned from selling at store to selling at home, it increased the comfort of shopping for customers. Got it? सी इसको मैं यहाँ से मूव कर पा रहा हूँ तो इसको मूव करने से क्या हो रहा है कि बस स्मूथनेस आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है। When retail transitioned from selling at store to selling at home, it increased the comfort of shopping for customers, but brands lost the Got it? retail transitioned from selling at store to selling at home, it increased the comfort of shopping for customers, but brands lost the ability to interact one-on-one with them, while also losing the personal touch. अब यहाँ पे मैंने फिर से इसको किया एंड सपोज ये वाला पार्ट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्लो हो जाए। While also losing the personal touch needed to convert engagements into transactions. So we thought of making. So this is called triangle mapping. Got it? Yes. Yeah. Okay. And now suppose if I want to freeze the frame, so what I do? Click here. I'll do the right click and insert frame hold. So you'll see कि यहाँ पे एक वो आ गया है, कट हो गया है। ठीक है? अब इसके आगे का जितना पार्ट है ना ये होल्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक। Transactions. So we thought of making because I put the hold frame hold option here. तो अब सपोज कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, यहाँ पे इसको होल्ड करना है और इसके आगे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू रहे। तो व्हाट आई डू, आई विल जस्ट कट ओवर हियर, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे सिर्फ ना एक अपने एरो की से एक पीछे जाऊँगा, एक फ्रेम पीछे जाऊँगा खाली। आई डू द राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक, ऐड फ्रेम होल्ड। तो अब ये एक फ्रेम का मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। You see? Needed to convert engagements into transactions. So we thought of making retail resilient to the ongoing crisis with the next-gen Shopster. Then again start again. Got it? So we thought of making retail resilient to the ongoing crisis with the next-gen Shopster. What was the option you clicked for the add what? Add frame hold. Frame hold. Okay. सो अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग को लेके, इनफैक्ट वीडियो प्रोडक्शन को लेके, वो है फ्रेम्स। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम्स एंड फ्रेम पर सेकंड, एफएसपी एंड ऑल दोस थिंग? Yeah. FPS. Sort of, yes. FPS, frames per second. Yeah. सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये होता क्या है कि वीडियो जो होता है ना, वीडियो इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो अगर हम कैमरे से किसी चीज़ को शूट करते हैं तो वो कैमरा क्या करता है कि अलग ढेर सारे वो फोटोग्राफ्स लेता चला जाता है। जैसे शटर आपका होल्ड है और जैसे पुराने उसमें क्या होता था कि हम रील्स यूज़ करते थे, तो वो रील्स जो है वो चलती रहती थी और शटर सिंस ओपन है कैमरे का तो उससे जो है इमेज कैप्चर होती जाती है। ठीक है,
तो अगर आप रील को देखेंगे पहले क्या होता था कि पहले जब रील्स यूज हुआ करती थी, तो अगर आप रील को देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि ढेर सारी अलग अलग इमेजेस हैं, और जिनको हम एक साथ प्ले कर देते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी प्ले करते हैं, तो वो लगता है कि वो मूव हो रहा है। Yes. ओके, Oh. ऑलराइट। सो इसमें जनरली जो हमारी आईज जो देखती है, हम जो यूज करते हैं किसी भी मोमेंट को देखने के लिए, वो होता है आपका 24 फ्रेम पर सेकंड या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 24 इमेजेस को 24 इमेजेस प्ले हो रही हैं, ठीक है? Yeah. यू गॉट इट? हाँ, एक सेकंड में 24 प्ले हो रही हैं। अब जब क्या करते हैं, जब हम इसका टाइम मैपिंग में जब इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो सपोज वो एक सेकंड की जगह हमने उसको कर दिया 5 सेकंड। तो अगर हम 5 सेकंड पे करेंगे और 5 सेकंड पे 24 फ्रेम्स अगर चलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ जो एक गैप होता है ना, एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के बीच में जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे ये लगता है आपका 24/1, ठीक है? सॉरी 1/24, कि एक सेकंड में आपका 24 फ्रेम्स चल हो गए। बट अगर हम उसको 5 सेकंड करेंगे तो 5/24 हो जाएगा, ठीक है? Yes. तो इसमें क्या होगा कि एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम और तीसरे फ्रेम में थोड़ा सा अटक अटक के आएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये कैसे है। कि सपोज ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ पे देखते हैं एक सेकंड में क्या होता है, ठीक है? अब ये 9-10 है, मैंने इसको क्या किया, 10-10 कर दिया, ठीक? मैंने एक की फ्रेम यहाँ पे लगा दिया, ये वाले की फ्रेम को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? सी एक सेकंड में कितना मूवमेंट हो रहा है, while also है ना? यहाँ पे इसके अगर मैं सीक्वेंस पे सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा है 25 FPS, यानी 25 फ्रेम्स चल रहे हैं एक सेकंड में, ठीक है? तो हमको यहाँ पे स्मूथ दिखाई दे रहा है while सब। also तो एक सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक के अंदर 25 अलग अलग आपके फ्रेम्स हैं। अब अगर मैंने इसको एक सेकंड से बढ़ा के सपोज 5 सेकंड कर दिया इसको मैंने, तो अब वो 24 फ्रेम्स जो हैं वो आपके 25 फ्रेम्स जो है वो 5 सेकंड पे जाएंगे, यानी एक सेकंड में सिर्फ 5 फ्रेम्स चलेंगे। तो फिर while ये also ऐसे losing अटक the अटक के person दिखेगा आपको। यानी आप यहाँ पे देखिए ये 9-10 है, और लेट्स मेक इट आई गेस 9 ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की फ्रेम्स हम लगाते हैं 10 सेकंड पे। और इसको मैं ले जाता हूँ 14 सेकंड पे कर देता हूँ, तो हमारा टोटल आ जाएगा 5 सेकंड का, एक सेकंड को मैंने 5 सेकंड कर दिया। अब सी with them, while ऐसे चल also रहा है, losing the personal touch needed to convert engagements into transactions. ठीक है? यानी अब देखिएगा एक सेकंड में जहाँ पे 24 चल रहे थे ना, अब एक सेकंड में कितने कितने वो होगा, कितने फ्रेम्स चलेंगे? सिर्फ 5 चलेंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं एक सेकंड में जाके कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है? ये सिंगल चेंज हुआ, दूसरा, थर्ड, 4, 5, मतलब 5। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 5 आपको अलग अलग, जैसे एक इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये तीसरी इमेज है, ये चौथी इमेज है, सॉरी, और ये पांचवी इमेज है। यानी एक सेकंड हम चले हैं 9 to 10 और सिर्फ 5 ही फ्रेम्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि ये 5 फ्रेम्स आने की वजह से अब ये ना बहुत ही अटक अटक के चलने लगता है, सीम्स लाइक अ लैग हो रहा है यहाँ पे। तो रिमेंबर कि अगर हमको किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना है, मतलब सॉरी स्पीड को कम करना है, स्लो डाउन करना है, तो वो फुटेज जो है वो हमारी
25 फ्रेम पर सेकंड की ना होके वो सपोज 60 फ्रेम पर सेकंड से है। यानी जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें हमारे पास कैमरे में एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि वो आपका 25 फ्रेम पर सेकंड पे लेना है, शूट करना है, या फिर 60 फ्रेम पर सेकंड पे लेना है, या 50 फ्रेम पर सेकंड पे लेना है, उसमें ऑप्शन होता है हमारे पास। तो अगर हमने किसी भी वीडियो को शूट करा है सपोज 50 फ्रेम पर सेकंड पे या फिर 60 FPS पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको अगर स्पीड को हम स्लो करते हैं विद 100%, 200%, अगर हम स्पीड को स्लो करते हैं, अगर उसकी स्पीड को अगर 50% कर देते हैं, यानी स्पीड को हम आधी कर देते हैं, तो वो नॉर्मली चलेगी। क्योंकि उसमें क्या होगा कि हमारे पास 1 सेकंड में सिंस हमारे पास 50 FPS पे हमने शूट करा है और हमने जब उसको ड्रैग किया और स्पीड को हमने 50% कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 सेकंड में हमारे पास 25 फ्रेम्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ 50। तो 25 फ्रेम्स जब आते हैं तो इसका मतलब आपका वीडियो स्मूथ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? with them. Well, Yes, I understood. आर यू श्योर? Hard, like it depends, like it's inversely proportional sort of a thing. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। देखिए मैं स्क्रीन ना, अब अगर हमने एक जो हमारा वीडियो होता है वो होता है आपका 25 FPS पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि 25 FPS पे शूट करें, इसका मतलब 1 सेकंड में हमारे पास 25 फ्रेम्स हैं, ठीक है? अब अगर मुझे इसकी स्पीड को स्लो कर देना है, स्लो बाय 50%, तो क्या होगा कि 1 सेकंड पे हमारे पास जो आएगी ये आएगा आपका 12.5 फ्रेम्स आएंगे, ठीक है? यानी हमने स्पीड को स्लो कर दिया बाय 50%, करेक्ट? स्पीड हमने आधी कर दी। Yes. गॉट इट? Yeah, yeah. बट अब जब हम इसकी स्पीड को आधी कर देंगे तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे पहले हमारा 25 फ्रेम्स आ रहे थे, अब खाली 12 फ्रेम्स आएंगे, 12.5 फ्रेम्स आएंगे, तो हल्का सा अटक के चलेगा। जनरली जो कार्टून जो एनिमेशन किया जाता है ना, वो 12 फ्रेम पर सेकंड पे किया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं आएगा। बट अगर सपोज करो इसको हमने और भी कम कर दिया, इसको ये क्या कहते हैं 50% की जगह मैंने 25% कर दिया अगर इसको, तो फिर अब हमारे पास जो है सिर्फ 60 फ्रेम्स आएंगे, ठीक है? तो वो बहुत ही अटक अटक के चलेगा। तो इसलिए क्या होता है जब हम शूट करते हैं ना, ड्यूरिंग द शूट हम क्या करते हैं कि कैमरे की सेटिंग्स जो है वो हम 50 FPS पे कर देते हैं, ठीक है? 50 FPS पे करने का फ़ायदा क्या होगा कि अब हमारे पास 1 सेकंड पे 50 फ्रेम्स आ गए, यानी 1 सेकंड पे हमारे पास 50 फ्रेम्स हैं, और अगर हम इसकी स्पीड को 50% स्लो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स आ जाएंगे, ठीक है? इसका मतलब ये अब एकदम स्मूथली चलेगा। तो कभी भी अगर स्लो मोशन कर रहे हैं ना, सो ऑलवेज प्रेफर दिस थिंग कि जो फुटेज हो वो हायर FPS की हो। और अगर हमने फुटेज सपोज शूट करी है 100 FPS पे, ठीक है, तो इस केस में हम एक फुटेज को 25% स्लो कर सकते हैं बहुत ही इजीली, यानी 4 टाइम हम स्लो कर सकते हैं किसी भी फुटेज को। गॉट इट? Yeah. Okay. But when it comes to speed up the thing, जब हम स्पीड अप करते हैं ना, with तो them. होता क्या है कि यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है कि 2 फ्रेम्स के बीच में गैप बढ़ जाता है, यानी दो एक तरीके से 2 फ्रेम का मतलब 2 इमेजेस आप बोल सकते हैं उसको, तो 2 फ्रेम्स के बीच में गैप बढ़ जाता है। लेकिन जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो बीच के फ्रेम्स कम हो जाते हैं। सपोज फ्रेम्स आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 25 तक फ्रेम्स है हमारे पास। तो जब हमने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को सपोज आधा कर दिया, तो अब वो 25 फ्रेम्स में से हमारे आधे फ्रेम्स कट गए,
ठीक, सपोज 24 फ्रेम्स पर अगर चल रहे होते, आधे फ्रेम कट गए, यानी 12 फ्रेम्स जो हैं वो कट गए, 12 फ्रेम्स जो है वही बचे हुए, वही दिखाई देंगे खाली, अगर हमने स्पीड को 200% करा तो। गॉट इट? इस पॉइंट पे इस चीज में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? अनामिका, हिबा, No, I think I'm fine. प्रज्ञा, एनी I- क्वेश्चन? वैसे तो बेसिक चीज में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अभी जो ये फ्रेम पर सेकंड समझा है, दैट आई हैव अंडरस्टूड। मतलब उतना कूल। बेसिक चीज में क्या प्रॉब्लम है? नो, लाइक द फाइल्स एंड लाइक द इंट्रोडक्शन टू प्रीमियर प्रो। अच्छा, हाँ, सो ये अभी आपको तो इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है ना? या सो द फाइलिंग्स एंड द ड्रैगिंग, ये कुछ रिकॉर्ड होगा क्या हमारा ये? बट हाँ, ये रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, ओके, रिकॉर्ड हो ही रहा है, गेस वो आपको शेयर हो जाएगा वो। हाँ, तो मैं वहीं से इंट्रोडक्शन ले लूंगी, क्योंकि देन इट विल बी लॉन्गर अभी अगर वापस इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो। या करेक्ट। या ओके, सो टाइम मैपिंग में किसी को कुछ भी ऐसा है जो पूछना है? एनी क्वेश्चन? No, I think एक बार करेंगे हम तो अपने से, then we will have something. Yes, correct. There's one more thing I would like to tell you कि अगर हमने अगर हमारे पास कोई ऐसी फुटेज है जिसमें म्यूजिक या वॉइस ओवर, इसमें ऑडियो भी है, ठीक है, अगर हम वहां पे टाइम रिमैपिंग करते हैं तो वो ऑडियो स्लो नहीं होगी, खाली वीडियो स्लो होगा। ओके, But we can make the audio also slow, right? you can make, and how can you do that is, suppose मैंने कोई वीडियो को इंपोर्ट करा, like yes, any video, सपोज ये एक वीडियो लिया मैंने और ये यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब सी यहाँ पे जब मैंने जैसे वीडियो को इंपोर्ट करा ना तो ऑडियो वीडियो दोनों आ गया, ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? अभी तक सामान डिलीवर क्यों नहीं हुआ? साहब गड्डी है कोई। हेलीकॉप्टर नहीं, टोल पर खड़ा हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है। हे भगवान, हर रोज की प्रॉब्लम है ये, अब आप ही कोई उपाय बताओ। ठीक है, सो दिस इज वन वीडियो। अब सपोज इसमें मुझे किसी पार्ट को स्लो करना है, ठीक है। सपोज ये वाला पार्ट है, ये जो एनिमेशन इसका हो रहा है जहाँ पे ऐसे करके हाथ ले जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे गॉड रिवील हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टाइम मैपिंग लगाई, यहाँ पे फ्रेम लगाया एक, और यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ ना आगे, तो ये सी कि ऑडियो चेंज नहीं हुआ, ऑडियो वहीं का वहीं है, खाली वीडियो हुआ। अभी कोई उपाय बताओ। तो अब यहाँ से क्या होगा कि वॉइस ओवर में हमारा, भगवान आप अब चिंता न करो, तुम्हारी ठीक है, समस्या वॉइस का ओवर जो है यहाँ पे समाधान सिंक लोगोनेव लेकर आया है। नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये फास्ट है। Yeah. So how can we do that? ठीक है। ओके, सो इसका तरीका यही है कि हमने सबसे पहले इसको अनलिंक करा, और तो यहाँ पे अब ये दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है, ऑडियो वीडियो। हमने यहाँ पे पहले की फ्रेम से हम गए, यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दी। मार्किंग किस चीज़ से लगाते हैं? एम से, ठीक है। यहाँ पे एक मार्क लग गया, और इस पे भी क्लिक करके हमने मार्क लगा दिया। तो अब मेरे पास टाइमलाइन पे भी एक मार्कर लगा हुआ है, सी दिस, और एक इस पे फुटेज पे भी मार्कर लगा हुआ है ये, और हमने लगाया है ये यहाँ तक किया है, ठीक है। तो एक मार्कर मैंने यहाँ पे लगा दिया टाइमलाइन पे, एक मैंने लगा दिया इस पे, ठीक है। तो ये मार्कर इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स,
तो इसका कुछ काम नहीं है इसका मार्कर का। ठीक है, अब जब मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया, तो मैं ये मार्कर वाला पॉइंट यहाँ पे अगर मैं ले आऊंगा वापस तो सिमिलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कट किया इधर से, इसको और इसको उठा के मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अब आप ही कोई उपाय बताओ। अब ये यहाँ तक चला, थोड़ा सा तेज कर देता हूँ मैं इसको। भगवान आप अब चिंता ना करो। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ऑडियो को खिसका दिया, इसके साथ इधर ले आया। अब बीच में कोई फिल करने के लिए आई हैव टू ऐड म्यूजिक और समथिंग व्हाटएवर इट इज। सिंस ये वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक, ऑलरेडी बैकग्राउंड म्यूजिक है और ऑलरेडी सब कुछ है, तो इसलिए इसमें नहीं हो सकता। बट अगर सिर्फ वॉइस ओवर होता और हमारे पास अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से होती तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे लगा के फिल कर सकते थे, किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक को। ठीक है, गॉट इट? Yes. बताओ। We can make the sound also matlab धीमा, right, according to the video, instead of adding another music or something, or I don't know which one. You're saying कि हम ऑडियो को थोड़ा सा धीमा कर दें, मतलब हाँ, स्लो जैसे डाउन कर दें। वीडियो, हाँ, yeah. अच्छा, So that तो it उस finishes यहाँ तक, पूरा end तक। हाँ, गॉट इट। इसका तरीका क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक को हमको इसको दोनों को काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा स्पीड, ये जब मैंने राइट क्लिक कराना है यहाँ पे, तो ये स्पीड ड्यूरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, हाँ। ये हमारे पास इस पे भी आता है, दोनों पे आता है, ऑडियो वीडियो दोनों पे होता है। Okay. तो मैंने स्पीड ड्यूरेशन को एक मिनट, लेट मी फर्स्ट चेक इसकी स्पीड ड्यूरेशन मैंने कितनी चेंज करी थी, 25.25 किया था। ठीक है, इसको मैं 25.25 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि ये थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, इसकी पिच बहुत ही लो हो जाएगी। Yeah, but like I understood the point, कैसे करना है अगर you know कहीं किसी और वीडियो में if I have to do it. हाँ, किसी और वीडियो में। द बेटर वे इज कि जब भी हम एडिट करते हैं तो वॉइस ओवर का हमारे पास ट्रैक अलग होता है, जैसे इसमें था ना, यहाँ पे वॉइस ओवर Yeah. अलग था, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग था। तो उस पे Yeah. हम क्या करेंगे कि सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसी को, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, और मैं ये वाला वॉइस ओवर यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक, एंड मैं ये वाली म्यूजिक भी यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, now in this case lost the ability to interact one-on-one with them, while also losing the personal touch needed to convert engagements into transactions. तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करा, सॉरी इस पे किया, इसको उठा के यहाँ ले आया। ठीक है, Increase the comfort of shopping for customers. But brands lost the ability to interact one-on-one with them, while also losing the personal touch needed to convert engagements into transactions. म्यूजिक चल रही है, ये स्लो हो गया, इतना ऑड नहीं लगेगा। Yeah, I understood. So we thought of making ठीक है. ठीक है, Yeah.
into transactions. All right. So we thought of making. Okay. तो ये टाइम मैपिंग हो गई. इसके बाद यू नो अबाउट मास्किंग की मास्किंग कैसे होती है वो पहले बता दिया था, करेक्ट? ऐसे करके उन्हें कोई मास्क कर दिया, ये पहले बता चुका था. नाउ दिस third thing is, suppose I need to add some text over here. So what I do, I'll click here. And add any text. ये इसको टेक्स्ट की जो एडिटिंग करूंगा मैं वो यहाँ से करूंगा. यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे सब पहले वो था, इस पे क्लिक किया था तो ये सब आ रहा था ना यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पे. अब ये आएगा यहाँ पे जब मैंने इस पे क्लिक करा. तो टेक्स्ट का इसको चेंज कर दिया, सपोज फोटो कर दिया. ठीक है. तो ये अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट आपको जैसे भी करना है आप वो कर दीजिए. यहाँ पे इसके टेक्स्ट पे स्ट्रोक आ जाएगा. ठीक है, स्ट्रोक ले आ गया. टेक्स्ट पे बैकग्राउंड कलर हो गया या शैडो आ गई. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. गॉट इट? टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ से सेट कर ली, टेक्स्ट को स्केल कर दिया. सो ये तो बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं. बाकी टेक्स्ट को यहाँ से जो भी इसका बाकी टेक्स्ट को हम यहाँ से भी वेक्टर मोशन से भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट से भी चेंज कर सकते हैं. अब टेक्स्ट में भी अगर मास्क लगाना होगा तो हम टेक्स्ट पे भी मास्क लगा सकते हैं. गॉट इट? और इस मास्क को एनिमेट भी कर सकते हैं. यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, सपोज यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, फिर हमने इसी मास्क पे क्लिक करा और With the next. तो यहाँ पे ये एनिमेट हो रहा है. Making retail resilient to the ongoing crisis with the next-gen Chopster. Okay. बाकी एनिमेशन का स्टाइल इज व्हाट यू कैन चूज बाय योरसेल्फ. To the ongoing crisis. ठीक है. अब सपोज मुझे एनिमेशन को स्लो फास्ट करना है तो मैं बस की फ्रेम मूव करूंगा, की फ्रेम मूव कर दूंगा तो एनिमेशन पास ले आऊंगा तो एनिमेशन फास्ट हो जाएगा, दूर ले जाऊंगा तो एनिमेशन स्लो हो जाएगा. ठीक है? गॉट इट? Retail resilient to the ongoing crisis with the next. ओके. अब सपोज यहाँ पे ये हो गया हमारा. एंड अब मुझे कोई कोई नई चीज़ ऐड करनी है. सपोज एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है. मैं राइट क्लिक यहाँ से करूँगा, न्यू आइटम पे जाऊँगा और कलर मैटे पे मैं गया, सिलेक्ट करा. मैंने सपोज ब्लू कलर को यूज़ करा यहाँ पे. ठीक है. इसको मैं यहाँ ले आया, इसके ऊपर ले आया, सपोज नीचे ले आया मैं टेक्स्ट के. सॉरी ऑफ है ना, ये ले आया. इसको मैंने अपना स्केल डाउन करा. ठीक है. अब यू कैन सी कि स्केल पे अगर मैं यूनिफॉर्म स्केल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास हाइट और वेट दोनों का अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. तो मैंने इसकी हाइट ये रखी, इसको इधर रखा, थोड़ा सा सेंटर पे ले आया. टेक्स्ट का मास्क की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया. ठीक. तो यू कैन सी कि ये ऐसे करके आ गया है. गॉट इट? ये दोनों. और अगर मुझे इसको एनिमेट करना है
So what I can do, either I can put the keyframe on like height पे मैं लाता हूँ keyframe यहाँ पे, तो suppose starting है, एकदम starting में मैंने keyframe पे click करा, then moving around 10 frames, इस पे क्लिक करा, पहले वाले को मैंने कर दिया 0। तो ये ऐसे करके एनिमेट हो गया। और इस एनिमेशन को थोड़ा बेटर करना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक इसको राइट क्लिक करा, इसको इजी इन कर दिया, इसको मैंने इजी आउट कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो वी कैन सी यहाँ पे ग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक है, इस ग्राफ से हम इसको ये ऐसे चेंज कर सकते हैं, इजी इंटरपोलेशन चेंज कर सकते हैं इसका। सी ये क्या है, ये ग्राफ के बारे में पता है क्या किसी को भी? नहीं पता। अच्छा, ऐसा होता है कि ग्राफ के बारे में ना मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में समझाता हूँ तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, बहरहाल जब तक आफ्टर इफेक्ट्स खुल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे करके आपका एनिमेशन हुआ है यहाँ पे। अब सपोज मुझे इसको भी एनिमेट करना है, ये टेक्स्ट को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने एक मास्क लगा दिया। ठीक है, अब फिर मास्क पे मैंने क्लिक करा और थोड़ा सा आगे गया मैं, जैसे ही पूरा हुआ यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, पहले वाले की फ्रेम पे गया और मास्क पे क्लिक करके मैंने इसको और इसको नीचे कर दिया। या आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट कि जो टेक्स्ट की जो लेयर है वो चेंज हो। ठीक है, मास्क मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे एक लगाया, दूसरा मैंने यहाँ लगाया की फ्रेम, पहले वाले पे गया, इसको मैंने नीचे कर दिया। तो ऐसे करके फिर इसको भी मैंने वही करा, easy in, फिर किया easy out। अभी ये ग्राफ क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। Retail resilient. ठीक है, Retail resilient. ये टेक्स्ट एनिमेशन हो गया यहाँ पे। ओके, इसमें इसका कोई काम ही नहीं है, की फ्रेम का भी काम नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, अभी इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। Retail resilient to the ongoing crisis with the next gen Shopster. इसको फिर अगर मुझे खत्म करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे क्या है What is? It's a coconut water. A must-have sales channel to ठीक है, next gen Shopster. A must-have sales channel to digital. अच्छा I think ग्राफ the बताता graph हूँ मैं sheet क्या is to animate, right? सॉरी। I think the graph sheet is about the animating bit where it can get fast and where it can get slow. यस एग्जैक्टली। सो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेता हूँ,
ये आफ्टर इफेक्ट्स है अभी। सो मैंने क्या किया, एक सॉलिड मैंने ये लिया, ठीक है, एक सर्किल लिया, और इसी को मैंने कुछ डुप्लीकेट कर दिया, तार ले लिया। ठीक है, अब आफ्टर 1 सेकेंड मैं इन सबका मूवमेंट कराऊंगा। ठीक है, मैं खाली ग्राफ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो डोंट सी द आफ्टर इफेक्ट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट गो इनटू दैट। मैंने तो मूवमेंट सपोज यहाँ से यहाँ कराया। ठीक है, तो अभी ये सारे मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं। बहुत स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे मूवमेंट ऐसे जा रहे हैं। तो अब अगर मैं सपोज इन सब में इजी ईज कर देता हूँ इनको। अच्छा, मैं इनका ग्राफ दिखा देता हूँ आपको। तो इनका ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको? Yes. Yes. ओके, अब मैं इसको अगर इजी ईज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा इसको आप ना क्लोजली देखिएगा तो आपको ये डॉट 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 दिख रहे हैं, करेक्ट? ये डॉट इज रेफरिंग टू दी फ्रेम्स। ये कौन से फ्रेम पे है? ठीक है, ये सारे इन डॉट्स पे जा रहे हैं। गॉट इट? Yeah. ओके, तो जब मैंने इसको ना इजी ईज किया, सी अभी सभी डॉट के बीच में यूनिफॉर्म वो है, गैप है, करेक्ट? सभी डॉट्स के बीच में जैसे मैंने इसको इजी ईज किया, यू कैन सी कि यहाँ पास में सब पास पास आ गए, यहाँ थोड़ा दूर होते चले गए और यहाँ वापस पास आ गए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये जल्दी कवर हो रहा है, फिर यहाँ से इधर का डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस ये थोड़ा देर में कवर हो रहा है, मतलब उतने ही टाइम में ये वाला कवर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कम टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कम टाइम लगा। सो सी, तो यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट आएगा ना, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। सी, अब देखिएगा ये थोड़ा सा धीमे चला, फिर तेज हुआ, फिर धीमे चला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले ये सबसे नीचे वाले को पकड़ा। ठीक है, इसका देखिए ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, धीमे चला, फिर तेज हुआ, फिर धीमे चला। तो मैंने ग्राफ को क्या किया, और मैंने इसको दोनों को पकड़ के थोड़ा सा और इसको पीक बढ़ा दिया। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस देखिए ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, यहाँ कम हो गया, तो यानी ये और स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर स्लो हो जाएगा सीधे से। ऑल्दो टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की सबकी बराबर होगी। गॉट इट? Yes. ओके, तो जैसे एक मैंने आपका ग्राफ ये सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इजी ईज इन आउट कर दिया सपोज। आउट कर दिया और यहाँ पे इन कर दिया। ठीक है, सी अगेन वही चीज़ हो गई, आउट और इन वही चीज़ हो गई।
इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से कर दिया। अभी क्या करेगा, ये सेकंड वाला है, जैसे चल रहा है। गॉट द डिफरेंस? Yes, yes. ऑलराइट। अब सपोज मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ ले गया, एंड थर्ड वाले में व्हाट आई डिड, मैं इसको ऐसे ले गया, ठीक है, एंड फोर्थ वाला में मैंने इसके साथ से हटा दिया, नॉर्मल रखा। ना चेक कैसे होता है। अब ये जो सबसे नीचे वाला है ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म जा रहा है कोई, ठीक है। इसके नीचे वाला जो है, ये जो है फर्स्ट वाला, ये आपका पहले धीमे जा रहा है फिर एकदम से तेज हो रहा है। इसका ग्राफ कैसा था, ग्राफ के साथ दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट का ग्राफ नॉर्मल था, ठीक है, इसका ये ग्राफ है, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। सेकंड का ग्राफ आप देखिएगा ऐसे करके है, तो पहले धीमे जाएगा और फिर एकदम से तेज हो जाएगा, धीमे गया फिर एकदम से तेज हो गया, ठीक है। थर्ड का ग्राफ पहले तेज होगा उसके बाद धीमे होगा, ये वाले का, इसका, ठीक है, पहले तेज हुआ फिर धीमे हुआ। फोर्थ वन इज इजी इन इजी आउट, पहले धीमे होगा फिर तेज होगा फिर धीमे होगा। गॉट इट? Yes. ऑल्दो सबके स्टार्टिंग का टाइम और सबके एंड का टाइम सिमिलर है, बट यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाती है एनिमेशन में, इसलिए हम ये यूज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने इसीलिए यूज किया था, ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये ग्राफ आया था, ठीक है, कि पहले धीमे जाएगा फिर एकदम से तेज हो जाएगा, ठीक है। Got it? Retail resilient to the ongoing. ये आपका एडिंग टेक्स्ट हो गया, करेक्ट। So guys, can you do something since you all are graphic designers? And अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अब मान लीजिए आपको अपना खुद का कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है, तो आप सीधा पेन टूल उठाइए और कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिएगा ये कि नया नया ये बन गया, और फिर इसको अगर आपको इसको एनिमेट करना है तो यू कैन सी यहाँ पे आपका इफेक्ट कंट्रोल पे यहाँ पे शेप है, शेप पे गए, ये पाथ है, पाथ पे हमने की फ्रेम लगाया, उसके बाद फिर आगे गए, यहाँ पे की फ्रेम लगाया, तो यहाँ पे हम इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करेंगे, सॉरी इससे, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कैसे भी, तो यू कैन सी इट एंड Next Gen Shopster, a must-have sales channel to digital. Got it? You got this part? Yeah. Okay. So what I want, do something, show some of your creativity. एक छोटा सा ऐसे ही किसी भी इसी वीडियो पे थोड़ा सा टेक्स्ट और कोई बैकग्राउंड का कुछ कलर लाइक दिस, यहाँ पे मैंने यूज किया था, ये ब्लू यूज किया था, फिर ये इसको एनिमेट किया था टेक्स्ट को, और फिर एक शेप एनिमेट किया था, तो मेक एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, ऑलराइट। Okay. Let's give it a try.
किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, कुछ पूछना है? एनीथिंग? अनामिका, दीपा, हिबा? No, but if I have a lot. I think you already know how to use After Effects. You must have an idea of it already, isn't it? Yeah, I do. But it's been a while since I've used it. So, Yeah, it's okay. Okay, and Pradnya? No questions now from my side at least. अभी तो I have actually मतलब ऐसे काफी सारे point doubts. Okay, एक काम करते हैं. Meanwhile, everyone is making something about that. I'm giving a brief introduction of Premiere Pro. Yeah, And sure. Sandesh, you are also Sandesh? Yes, Hassan, yes. Yes. You also joined right now only? Yeah, I've joined in the morning. So now I just joined sometime back. So you have an idea of using the basic overview of Premiere Pro and adding the and trimming the footages and all those things, isn't it? Sandesh? Yes, Hassan, yes. Okay. So Pradnya and Sandesh, I'm just giving a brief introduction again. Yeah. All right. So here on this panel, okay, you can add, you can import the footages, like Okay. right click over here, click on import, and import any of the footage, whatever you want. All Okay. right. Okay. And what I did, I created a folder. You can see this video as this SFX. These are the different folders. Like just right click over here. Okay, add new bin. When I add new bin, a new folder is generated, created. Okay. So like a group thing, right? Yeah, like a group thing. Okay. Okay. So there is a difference in illustration or Photoshop, the layer part, and the difference in this video editing platforms. The difference is that वहाँ पे ना आपके पास layers होते हैं, उसमें group करते हैं. But here you need to create a folder. ठीक है, यहाँ पे पूरी एक लाइब्रेरी हो जाती है जिसमें आप फोल्डर्स बनाते हैं और उसके बाद चीजें करते हैं. बिकॉज लेयर वाला पार्ट यहाँ पे ना आपका टाइमलाइन में आता है. Okay. कि किसको किसके ऊपर रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, टाइमलाइन पे आता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे जैसे आपने किसी को भी इंपोर्ट करा, फिर आप सीधा ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे ले जाके, तो ये इधर आ जाएगा. ओके. मतलब from left folder to right folder आपको ड्रैग करना है. Sorry, left from left panel to right, panel हाँ, to right. timeline panel. Okay. ओके. Yeah. फिर इसके बाद इसको अगर आपको ट्रिम करना है, so what you can do, अच्छा ये इस तरीके से आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं टाइमलाइन को. हाँ. ठीक है. अगर आपको ट्रिम करना है, so either you can do like this, ऐसे करके. ठीक है, यहाँ पे ट्रिम कर दिया. और what you can do is click on this icon, it's a razor tool or shortcut C. ठीक है, cut it over here, and click this and delete. और इसको ड्रैग कर दिया यहाँ पे. Okay. ठीक है. हाँ, so ऐसे करके कट हो जाएगा. अब ये जो ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन थोड़ा सा देखिए अटक रहा है. ठीक है. इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम यहाँ से वीडियो ट्रांजिशन से वी विल सेलेक्ट क्रॉस डिसॉल्व एंड ऐसे करके हम थोड़ा सा ट्रांजिशन को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं. ठीक है. अब सपोज मैंने यहाँ पे इसको कट करके if I need to put another footage, सपोज एक फुटेज मैंने यहाँ पे ले ली, like this one, कट किया. ठीक है, इसको यहाँ पे रख लिया. ठीक है, ये है. तो यहाँ पे क्रॉस डिसॉल्व मैंने यूज कर लिया.
सो यू कैन सी कि अब यहाँ से ऐसे करके आ रहा है ट्रांजिशन है ये। तो ऐसा ट्रांजिशन इफ वी वांट वी हैव टू पुट क्रॉस डिसॉल्व इसमें, ऐसा कुछ है? या क्रॉस डिसॉल्व और फिर ये डिप टू ब्लैक है, डिप टू ब्लैक में क्या होगा, इस Black. ऐसे करके जाएगा। ओके, ठीक इट्स लाइक ओपेसिटी क्रिएटर वाला चीज। ओपेसिटी काइंड ऑफ थिंग। हाँ, डिप टू वाइट पे या वाइट से होते हुए जाएगा। अच्छा ओके। Then you can use other transitions also, like push transition। तो यहाँ पे ऐसे करके पुश हो गया, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन इज आल्सो जस्ट लाइक दैट ओनली। स्लाइड ट्रांजिशन में अगर स्लाइड हुआ है, पुश में दोनों चीज मूव हुई थी, स्लाइड में ऐसे ट्रांजिशन हुआ है। ओके ओके। स्प्लिट ट्रांजिशन, ठीक है। नाउ इफ यू क्लिक ऑन द ट्रांजिशन पार्ट यू सी दिस, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये ट्रांजिशन पार्ट है? हाँ, ये ट्रांजिशन के सेटिंग्स हैं। अच्छा ओके। सपोज मैंने ये लिया आपका स्लाइड ट्रांजिशन डाला है, ठीक है। अभी ये ट्रांजिशन जो है ये हमारा लेफ्ट से राइट पे हो रहा है। I want it from right to left actually. So what I did, I will just reverse it. ओके ओके ओके। ये ट्रांजिशन वाला पार्ट हो गया। एंड ठीक है, सो कट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, दो फुटेजेस मर्ज करना हो गया, ठीक है। ये पार्ट ऐड हो गया। एंड इसके बाद सिमिलरली ऑडियो में भी ऐसा ही होता है। ऑडियो वाले पार्ट आपने देखा है ना, लाइक ऑडियो पे यहाँ पे आ गई, एक कोई ऑडियो ले लिया मैंने, ऑडियो को भी हमने ऐसे ही ट्रिम करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट सिमिलर वे पे। Offered by conversational commerce webbots. और अगर आपको ऑडियो सिंगल ऑडियो नहीं है, अलग अलग ऑडियो है, लाइक एक ये ऑडियो हो गई आपकी, उसके बाद सपोज एफएक्स में आपने कुछ ये ऐड कर लिया, बाइसिकल व्हील का कुछ अपने ये दूसरा इफेक्ट के लेयर पे दूसरी ऑडियो हो गई है। एक्चुअली ये एक ऑडियो वॉइस ओवर हो गया, ये कोई भी मैंने एक अलग इफेक्ट यूज कर लिया, लाइक दिस इज अ बाइसिकल इफेक्ट, बाइसिकल व्हील का। Prefer proactive customers. अच्छा लाइक ओके ऑडियो। हाँ ठीक है, ये कुछ डिजिटल है, देखेंगे क्या है। Shoppers 86% of on ये थोड़ा सा वैसा पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज सम डिजिटल इफेक्ट। ओके ऑलराइट, and then I'll use a background music, blues rock। prefer proactive customers. तो अब मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, ओवर हियर यू कैन सी ऑडियो ट्रैक मिक्सचर सीक्वेंस, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 ट्रैक्स है ना, A1 A2 A3। तो दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, ओके। तो व्हाट आई कैन डू कि मुझे पता है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये A3 है, मैंने इसको स्लो कर दिया, ओके ठीक है। 86% of online shoppers prefer proactive customer support. लाइक SFX भी बहुत तेज जा रहा है, मुझे इसको भी स्लो करना है, मैंने इसको भी स्लो कर दिया। Major advantage offered. 86% of online shoppers prefer proactive. But suppose if I want कि इस ट्रैक का, सेकंड ट्रैक का, ये जो है आपका ये वाला ऑडियो, इसकी वॉइस तेज हो और इसकी वॉल्यूम कम हो, तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई विल गो टू ऑडियो क्लिप मिक्सचर, नॉट द ट्रैक मिक्सचर बट अ ऑडियो क्लिप मिक्सचर, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैक है, इसमें सारे ट्रैक कर रहा है। मैं क्लिप पे जाऊंगा, इस पे जो मैंने क्लिक करा, इसकी वॉल्यूम मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी धीमे रहे, तो मैंने इसको हल्का सा नीचे करा सेकंड वाले को, ठीक है। ये कम हो गया। अब मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे इसको ले जाऊंगा, क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। अब इसको मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी तेज हो, तो इसको मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे,
ठीक है, 86% of Okay, online okay. shoppers prefer proactive ये customer धीमे हो support. गया। अब मैं इसको खाली यही सुनाता हूँ, ठीक है, ये हाई है, ये लो है। Got it? Okay. So audio clip mixer is volume control and audio track mixer is some speed control, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ऑडियो क्लिप, सी ऑडियो क्लिप इज, दिस इज अ क्लिप, ठीक है, this is also a clip, this is also a clip, this is also a clip. These are audio clips, these are video clips. Okay. Got it? So ऑडियो क्लिप मिक्सचर में हो जाएगा कि पर्टिकुलर उस क्लिप के ऑडियो को हम वो कर सकते हैं, उनके ऑडियो को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑडियो क्लिप। तो जब अगर मैं इसको बढ़ाना है तो मैंने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया, लेकिन इसको नहीं, इसको कम करना है तो मैंने इसको कम कर दिया, या मैं कह रहा हूँ इसको भी मैंने बढ़ा दिया और इसको मैंने कम कर दिया, ठीक है, तो ये कम हो गया, ये बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं ऑडियो क्लिप्स की वॉल्यूम के साथ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज ऑडियो ट्रैक मिक्सचर? इट इज लाइक A1, A2, A3, दीज आर दी ट्रैक्स। यहाँ पे मेरे पास पूरे ट्रैक्स हैं सारे। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज ट्रैक 2 को, इसको अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ ना, तो इसकी और इसकी दोनों की, इस पूरे ट्रैक की वॉल्यूम कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे ट्रैक का मिक्सचर है ये, और यहाँ पे आपका क्लिप का है। गॉट इट? ओके। ओके, अब जैसे ये है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ, इस मैंने जब ये एक्सपोनेंशियल फेड इफेक्ट लगाया तो सी इसकी जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके बैकग्राउंड जो है वो कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। E-commerce web. So do something by yourself, और किसी भी कुछ भी वीडियोस को लेके, कुछ भी फुटेजेस को लेके एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐसे बनाइए, एंड देन I'll see. ओके। ठीक है, हाँ। ओके। अच्छा गाइस, फिर अभी क्या बचा हुआ है, मतलब सॉरी, आप लोगों ने कुछ बनाया? Hassan, I'll be a little honest with you. My head is like that whole time till that all the first 4 things I merging and all that I understood properly. I did it myself. But that whole time wala thing, it was a lot to take in. So I genuinely need to go through it again, whatever you told, whatever you explaining, but Sure. actually do something out of it. Plus I've been attending this since morning. अभी सच में दिमाग नहीं चल रहा है तो maybe with a fresh mind I will look at it again and then फिर मैं try करूँगी तो better रहेगा, because अभी में से ओके, सो अभी एक चीज मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सिंस वी डोंट हैव मच टाइम्स नाउ, अभी अराउंड 4 होने वाला है, सो देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज लेफ्ट, दैट इज कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग, आई गेस यू गाइस ऑलरेडी नो मच अबाउट इट, बिकॉज आप लोगों ने फोटोशॉप पे और उस पे वर्क कर ही रखा होगा, करेक्ट? सो बस प्रीमियर प्रो पे हम इसको करते कैसे हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? Yeah, just explain that. In anyway, we will go through the whole session again with fursat se thoda aur, and then we'll try khud se or different options. Then maybe we can do something. But abhi डेफिनेटली, मतलब ये एक दिन का काम नहीं है, रेस्ट क्या है कि आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, एंड बेटर यू नो गो विद यूट्यूब वीडियोस, दे आर रियली हेल्पफुल, देयर आर मेनी वीडियोस। तो वहाँ पे जो बेसिक चीजें होंगी ना, लेट मी टेल यू, आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 8 years, एंड मैंने आज तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है इसकी, कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करा है, और आई एम जस्ट अ बीटेक गाय, एंड ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब से सीखी है। टोटल एनिमेशन,
वीडियो सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग मैंने सब यूट्यूब से ही लर्न करा है. Yeah, more than just watching videos, we really need to do it ourselves with Exactly. ऐसा So the best thing to do is तभी आएगा. just take a project. Yeah. मैंने जब ये किया था तो मैंने ऐसे नहीं किया था. मैं सीधे क्लाइंट के पास गया and I asked कि यार I'll make a video. And literally I'm telling you, I even don't know anything about making a video. Yeah. And he said okay fine. And I said कि I'll give it for free. And उसके बाद मैंने उसको ले लिया. उसके बाद मैं करता गया और उसके बाद सीखता चला गया ऐसे. Yeah. सो इसमें मैं आपको जितना भी बता दूंगा, मैं जितना बताता जाऊंगा, स्टार्टिंग में सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, पीछे वाला भूलते चले जाओगे. That's सो what. प्रैक्टिस Yeah. इज इम्पोर्टेंट. या सो मतलब तरीके से तो ऐसा होना था कि सपोज मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे तीसरी चीज़ बताऊंगा. बट सिंस वी हैव ओनली वन डे, सो मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ. वीडियोस आपको जब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, और उसके बाद आप एक एक पार्ट को देख के खुद से करिएगा. एंड ऑल्सो ट्राई टू यूज यूट्यूब, और वहाँ पे बहुत से ट्रिक्स और बहुत से अच्छे वीडियोस हैं वहाँ पे, जो कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको चीज़ें. Yeah, we'll go through it. सो मैं बस कलर ग्रेडिंग और बता देता हूँ. एवरीवन इज हियर? जो भी था वो है. Yes. ओके फाइन. सो बाय द वे, आप लोगों ने कुछ किया है अभी, कुछ भी बनाया है किसी ने? हिबा आपने? I'm making still. ओके फाइन. सो यू नो ना कि कैसे करना है एनिमेशन वाला पार्ट और बाकी सारी चीजें. यू गॉट इट? Yeah. कूल. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू कलर ग्रेडिंग नाउ. सो यहाँ पे हम आते हैं, लुमेट्री कलर्स पे क्लिक करते हैं, विंडोज पे जाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अब जैसे हमारा वो ओपन हुआ था आपका ये एसेंशियल साउंड्स, वैसे ही हमारा ओपन हो गया है लुमेट्री कलर्स. यहाँ पे मैंने किसी भी फुटेज को लिया, सपोज इसको लिया, इस पर क्लिक करा, बेसिक करेक्शन पे गए. सो हेयर आई कैन ऐड और डिक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, एंड देन वही एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, वाइट्स, ब्लैक्स. आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग, करेक्ट? You are a graphic designer, you must have an idea of it, na? Yeah. We know about that. हाँ, ठीक है. सो ये हो गया. बाकी वाइट बैलेंस के लिए हमने कोई भी वाइट ऑब्जेक्ट को ले लिया, उसके वाइट बैलेंस कर लिया. ठीक है, दैट इज वन थिंग. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच इज लिमिट्री स्कोप. ठीक है, ओके, सी दिस पार्ट. तो जब भी हम ऐसे कलर करेक्शन करेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग हमारे पास होता है. लाइक एक ये हो गया, एक हमने हिस्टोग्राम ऐड कर लिया. ठीक है, हिस्टोग्राम इस तरीके से ऐड नहीं करना था. ओके, हाँ, यूज दिस वन. जैसे यू कैन सी दिस रेड, ग्रीन, ब्लू. तो व्हाट वी डू, हमने जैसे कलर करेक्शन पे जाएंगे ना, वी नीड टू केयर कि ये जो चीज़ है ना, ये जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर ना हो. इसका मतलब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो वी विल ट्राई टू मैनेज दिस थिंग. ठीक है, इसको हाईलाइट को थोड़ा कम कर दिया यहाँ पे. अभी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, तो वाइट यहाँ पे ले आए, ब्लैक को थोड़ा बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया, एक्सपोजर. ठीक है, तो जैसे ये नीचे टच हो रहा है ना यहाँ पे,
ये टच बहुत ही हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ नाइस कलर करेक्शन। You can see the difference like this. ठीक है। अब सपोज कि कलर करेक्शन में ही मुझे कुछ मास्किंग भी करनी है, तो व्हाट वी डू, वी गो हियर, यहाँ पे लिमेट्रिक कलर आपको दिखाया ना, ये यहाँ पे मैंने एक सपोज फेस पे मैंने एक मास्क लगा दिया, ठीक है। इसका मैंने फेदर बढ़ा दिया थोड़ा, और इसको मैंने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया, ठीक है। हाईलाइट्स कम करे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाया, शैडो थोड़ा कम किया, वाइट थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये किया। अब इफ आई क्लिक दिस ट्रैक मास्टर, ओके या, इफ आई क्लिक ऑन दिस ट्रैक बटन, क्या होगा कि ये इसके फेस के साथ ये ट्रैक होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रैक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैक हुआ है, यू कैन सी ये ट्रैक हो रहा है, गॉट इट। Yeah. एंड सपोज इफ कुछ प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ये एआई के थ्रू होता है, और बहुत तेज अगर फेस मूव हो रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाते हैं, तो वहां पे आप उसको मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू ट्रैकिंग। एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो सी द कर्व्स एंड द बेसिक व्हील्स जो भी हैं, ठीक है। ये अब इसका अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ इतना पार्ट लिया, और इसके लिए मैंने इस पर जो भी करेक्शन करूँगा तो सिर्फ इतने पार्ट लिया जाएगा। अब सी, यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, ये इसके हेयर के पास हो रहा है। कैन यू सी दिस? हाँ, ये हेयर के पास इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ना इसको सेलेक्ट किया था। ये जो कलर ग्रे है ना, मैंने ऐसे करके कलर सेलेक्ट कर दिया था। ओके। इसको मैं जैसे 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 मेनली ये वाला पार्ट सेलेक्टेड है ना, सपोज इतना मैंने सेलेक्ट किया, और फिर इसका मैंने कॉन्ट्रास्ट अगर चेंज करना होगा तो इसका कॉन्ट्रास्ट, फेस का कॉन्ट्रास्ट चेंज हो गया। शार्पनेस थोड़ी सी कम करी, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, और सॉरी कम कर दिया, कॉन्ट्रास्ट और कम कर देता हूँ, टिंट में थोड़ा सा ब्लैश में कर देता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा लो कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि ये कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। सी द डिफरेंस, ठीक है। 6% of online shoppers prefer proactive customer support. 86% of online shoppers prefer. Got it? Yeah. Okay. Then comes to the last part, that is rendering. So rendering में suppose मुझे सिर्फ ना इतना यहाँ से यहाँ तक का करना है render. तो what I do, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में I'll click this mark in, ये सिलेक्ट हुआ, एंड मैं इधर आऊँगा, यहाँ पे मार्क आउट कर देंगे, ठीक है। इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया। देन I'll press M, control M is for render, and nice, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे रेंडरिंग का सिलेक्टेड है, ठीक है, ये, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना रेंडर करना है, तो ये सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज टू रेंडर, आपका H264 फॉर्मेट पे हम रेंडर करते हैं इसको, एंड देन हाई मैच रेट पे कर लेंगे। और आपका सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करना है, तो आपको ही चेकबॉक्स है, वीडियो करना है, ऑडियो करना है, दोनों करना है। यहाँ से यू कैन सेलेक्ट एंड देन सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड इट विल गेट एक्सपोर्ट।
ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया आपका। Got it? Yeah. All right. So any question? Last में export पे या color correction में? Transition from selling at store. I mean, I think, especially the initial part, I understood whatever I did. Like I said, the whole time thing and this thing, I need to go through it again and do it एक बार खुद से. Then I'll Yeah, understand. sure. But like you definitely taught us like easily. समझा सब जितना समझ Thank रहे you. थे अच्छे से. अच्छा, इस पार्ट पे ये जब ये वाला पार्ट था हमारा टाइम रिमैपिंग वाला, आई कैन टेल इट अगेन इफ यू वांट कि की फ्रेम्स कैसे लगाने हैं और इसको बस कैसे इसको टाइम रिमैप करना है. I think you actually told अच्छे से only. It's just that my head isn't working, so I'm not able to concentrate on that. So I think वापस 6 बताने hours का is फायदा. actually 6 hours is actually too much, you know. Yeah, at one go. I mean, that is Yeah, I got a it. lot. तो अभी अगर वापस भी आप बताओगे तो फायदा नहीं है. अभी तो कुछ समझेगा नहीं. So it's okay. I I got mean, it. I think उस टाइम भी मैं सुन रही थी, but like I said कि concentration नहीं था तो, but you were telling अच्छे से only, like everything was there. So I'll just go through it वापस. चलेगा. All right. And what about Hiba? Yeah, even I've understood it. I will have to go through the videos again because like it's been an information dump on all of us. Yeah. Yeah, I got A it. lot of things Exactly. at the time because like this I studied over a course of like 3 months, little by little each thing. Today we've learned everything in 6 hours. Exactly. Yeah. All right. And what about Pratnya? अभी तो आई हैव नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. अभी जो मेरे को इंडिविजुअली बताया था द इनिशियल पार्ट वो आई हैव अंडरस्टूड. फिर बीच में थोड़ा मेरे को फ्रेम्स पर सेकंड वाला समझ में आया था एंड द टेक्स्ट थिंग आई अंडरस्टूड. रेस्ट अभी Cool. थोड़ा झोल है दिमाग में. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि मोस्टली जैसे जो पार्ट आपका ऑडियो का था, ऑडियो एडिटिंग का, और जो कलर करेक्शन का पार्ट था, वो आपका बस ध्यान रखिएगा लिमेट्रिक कलर विच इज आप विंडो से लाके कर सकते हैं एंड यू कैन डू इट ऑल योर बाय योरसेल्फ. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, यू विल लर्न इट. एंड वैसे ही एसेंशियल साउंड्स में जाके हम साउंड्स की एडिटिंग भी कर सकते हैं. तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको खुद से 1-2 घंटे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को थोड़ा सा जैसे जैसे करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है. हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो ये. और संदेश? Yes, Hassan, yes. Yes. Any question? No. All right. I think you need to watch the whole video again. Yeah, I basically don't work on this software. I take care of the L&D part and so it's fine. Nice. All right. Okay. So everyone, it was really nice to meet you all, guys. And if you have any doubt regarding this, the Premiere Pro or After Effects, so you can ask my number from Edu for sure, and you can anytime connect with me. Oh, Sure. Thanks a lot. It was really nice. You explained it very easily. Thank you so much for your time. Thank you, guys. Thank you, Hassan. Thank you, Hassan. Whatever the queries would come, I will forward to you. And I hope everybody had a great learning session today. Yes, definitely. And thanks everyone to find time on weekend and thanks to Hassan as well.
and Sandesh to coordinating for me for the last 1 month for this training. Yeah. Thank you, Hasan. Thank you, Nishit. Thank you. Thank you. Okay, thanks a lot. Bye. Bye bye. Bye.